New Hope TV, your encounter with God. Let's go to 1 John chapter 2 and verse 1 right now. और चलिए निकाले यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय पहला वचन. See what it says. My little children, these things I write to you so that you may sin. And if anyone sins, not knowingly, not purposely, but by mistake, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. See? हे मेरे छोटे बच्चों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो. और यदि कोई पाप करे जानबूझकर नहीं, अनजाने में, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह. See, the scripture says that we have an advocate before the Father, and I'll tell you one thing, this advocate has not yet lost a case, and I don't think he will ever lose a case in the future. Somebody say glory be to Jesus Christ. Hallelujah. सिंहासन के सामने देखिए हमारे लिए एक वकील है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो वकील अपना कभी कोई मुकदमा हारा नहीं है और ना ही कभी हारने वाला है. You must be going through a court case, और शायद हो सकता है आप अदालती मुकदमे के दौर से जा रहे हो, going through certain issues. शायद हो सकता है आप कुछ मामलों से लड़ रहे Lift your hands right now and say, oh God, plead my case, oh God. अपने हाथ ऊपर उठाकर कहिए, हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुकदमा लड़. Jesus, यीशु, I depend on you. मैं तुझ पर निर्भर होता You हूँ. will not fail me. तू मुझे नाकाम नहीं And करेगा. I tell you, और कहते हैं मैं आपसे, you will come back with a testimony. आप अपनी गवाहियों के साथ वापस Some of आएंगे. you lost your job, आप में से कुछ ने अपनी नौकरी or गंवाई, you fear that you've lost your job. या फिर आपको ऐसा महसूस होता आप नौकरी गंवाने पर Mark my हैं. words, देख लीजिएगा, you will testify. आप गवाही देंगे. Somebody shout कोई hallelujah. तो चिल्लाए हालेलुया. We have an advocate before the Father. हमारे पास एक वकील है पिता के सम्मुख. See, notice the character of that advocate, Jesus Christ the righteous. It shows you the character of the advocate. और देखिए उस Wow. वकील का जो चरित्र जो है यहाँ पर बताया गया है, देखिए यीशु अर्थात धर्मी यीशु मसीह. Hallelujah. Hallelujah. You see that? आप देखते हैं The character. चरित्र. It's not like those people, they give you the right advice, they give you the right scriptures, but behind your back they make fun of you instead of praying for you. और देखिए उन लोगों के जैसा नहीं जिनके पास आपको बताने की अच्छी बातें होती है, अच्छे सही वचन भी होते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई करेंगे. यीशु ऐसा नहीं करता है. There are people who will point out everything that is wrong with you, but they will never pray for you. I tell you, such people are scoffers. Thank God for Jesus. और देखिए ऐसे लोग होते हैं जो आपके बारे में हर एक कमियां और कमजोरियों को बताएंगे, लेकिन कभी वे आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे. वे आपका उपहास करने वाले लोग हैं. परमेश्वर का धन्यवाद. यीशु पूरे का जो इंटरनेट पर छाप देंगे, लेकिन यीशु ऐसा एक नहीं. 2 मिनट की प्रार्थना भी नहीं करेंगे आपके लिए. I'm telling you, कहते हैं आपसे there are such people today. ऐसे लोग हैं. But I want you to not look at them. I want you to look at Jesus. चाहते कि आप उन लोगों की ओर ना ताके, आप यीशु की ओर देखें. Secondly, दूसरी चीज, we have मध्यस्थी करने another वाला है. intercessor. और एक मध्यस्थी Go करने with me वाला. to the book of Romans right now. चलिए निकाले इस समय रोमियो की पत्री. Romans 8:26. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 26वां वचन. See what it says. देखिए वचन क्या The है. 26वां Spirit वचन. also helps us in our weaknesses. आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता For है. we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercession for us. How? With groanings which cannot be uttered. क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है. There are times ऐसे दौर आते when हैं you're so burdened, जब आप पूरी तरह से बोझ तले दबे होते you हैं, don't feel like praying. आपको प्रार्थना करने जैसा महसूस ही नहीं May I encourage you? होता. मुझे आपको हौसला बढ़ाने दीजिए. You know, just come in that place of prayer. बस उस प्रार्थना के मुकाम पर आइए. Just sit down over there. बस आके वहां बैठिए. And when you do that, जब आप ये करते हैं, you see the Holy Spirit will take over. तो आप देखते हैं पवित्र आत्मा नियंत्रण You लेगा. may just start crying. Maybe you may just speak and the words may not be there, but you see the Spirit of God is interceding through you. शायद हो सकता है कि आप पुकारने लग जाए या रोने लग जाए, भले आपके मुंह से शब्द ना निकल रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा. वो आपके लिए मध्यस्थी करेगा, प्रार्थना विनती The करेगा. Holy Spirit is interceding along with Jesus before the Father. पवित्र आत्मा यीशु के साथ मिलकर पिता के सामने विनती याचना करता है. Praise God. So you see the Holy Spirit is also an intercessor. तो आप देखते हैं पवित्र आत्मा भी मध्यस्थी करने वाला Come on व्यक्ति है. somebody, चलिए hallelujah. कोई तो बोले हालेलुया. Lift your hands as the Holy Spirit. अपने हाथ उठाकर बोलिए पवित्र आत्मा Intercede through me. मेरे जरिए मध्यस्थी की प्रार्थना That's कर. how we praise, people of God. That's how your petitions go before the Father. इसी तरीके से तो आप प्रार्थना करते हैं और इसी तरीके से आपके निवेदन जो है पिता के सामने पेश किए जाते हैं. Today, आज just come before the Lord. बस प्रभु के सामने आ जाइए. That's it. बस इतना The ही. Holy Spirit will start praying through you. पवित्र आत्मा आपके जरिए प्रार्थना He करने will लगेगा. start praying the perfect will of God on your behalf. और देखिए आपके पक्ष में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के मुताबिक वो आपके लिए प्रार्थना करने लगेगा. From this we can see that how powerful and how important intercession is. इस
इसके जरिए हम देख सकते हैं कि मध्यस्थी करना कितना सामर्थ्यशाली है और कितना अहमियत रखता है। People of God, परमेश्वर के लोगों, this is what I want to tell you today. यही तो आपसे आज हम कहना The चाहते हैं। prophetic power of intercession. और मध्यस्थी की प्रार्थना करने की भविष्यवक्ताई सामर्थ, Are you listening right now? सुन रहे हैं इस This वक्त? is how it happens. इसी तरीके से होता है। And lastly, और आखिरी, I want to take you to something very, very powerful today. और इस विषय पे आगे जाने से पहले देखिए कुछ खास बातों पर ले जाना चाहते हैं आप। I want you to turn your Bibles with me to the book of Exodus 17. Let's read verse 8 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके 8वें वचन से। Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. वचन में लिखा है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। Do you know this place called Rephidim? आप जानते हैं रपीदीम नामक यह स्थान? This was the place where Israel did not get water. ये वो जगह थी जहां पर इजरायलियों को पानी नहीं मिला था। They went through a season where there was absolutely no water. Now please understand, in the desert, no water, it's very, very difficult. और देखिए वे अपने जिंदगी के ऐसे दौर में जा रहे थे जहां पर उनके लिए पीने को कुछ पानी नहीं था। सोचिए जरा, रेगिस्तान की उस जमीन पे से जा रहे हैं जहां पर उनके लिए बिल्कुल भी पानी नहीं, बहुत ही मुश्किल दौर। It's a very emotional time. और ये बहुत ही भावनात्मक और जज्बाती समय था। You know when the devil enters? आप जानते कब शैतान अंदर आता When है? you are low emotionally. जब आप भावनात्मक तौर पे एकदम नीचे स्तर He में will होते हैं, bring his greatest attack at that time. उस समय पर वो सबसे बड़ा अपना हमला ले आएगा। So already they were having no water. They were mumbling and grumbling. You see how he spoiled that relationship with God, and bang, he brought another attack to finish them off. Many of you, please listen very carefully. Be very careful with your emotions. और देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि वे पहले से एकदम थके हारे स्थिति में थे, एकदम दयनीय स्थिति में थे। वहीं पर देखते हैं कि शत्रु ने पहले ही उनके लिए इतनी बड़ी फौज को लड़ाई लड़ने वाला हमला उनके ऊपर लेकर आया। इसीलिए आपसे कहना चाहते हैं बहुत ही सावधान रहना है आपको अपने भावनाओं और जज्बातों के साथ। Through the circumstances, he will bring you to a place emotionally down, and he will launch another attack. Now this is how you overcome it. And you are saying, God, one is not finished, another is come. God, what's happening? Listen. और ध्यान से सुनिए, जब आप इस तरह के दौर में होते हैं तब परिस्थितियों के जरिए वो आपको और भी निचले स्तर में लेकर आएगा और फिर वहां पर उसके बाद वो आप पर और एक हमला कर देगा। फिर आप कहेंगे प्रभु एक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया। देखिए आपको बहुत ही सावधान रहना, ध्यान से सुने। This is how the enemy operates. इसी तरीके से शत्रु काम करता है। But today I've got good news. लेकिन आज हमारे पास अच्छी खबर है, You will have the victory in the name of Jesus. आपको विजय मिलेगी यीशु के नाम में। Somebody lift your hand and shout, I receive this word today. Now Moses understood the strategy of the devil. और देखिए मूसा ने शत्रु की इस योजना को, इस नीति को समझ लिया। The Bible says the wise learn to discern. Oh my देखिए goodness. बाइबल ऐसा कहती है बुद्धिमान लोग जो है परख करने के लिए समझते हैं, सीखते हैं। Please listen, please सुनिए listen. सुनिए, Now what does Moses do? देखिए मूसा ने क्या किया। Moses said to Joshua, मूसा ने यहोशू से कहा, okay, now listen carefully. अब सुनिए ध्यान से, Choose some men and go and fight with Amalek. हमारे लिए कुछ पुरुषों को चुनकर अमालेकियों से लड़ने जा। Now notice the strategy of Moses. अब गौर करें यहाँ पर मूसा की नीति क्या है। He's calling Joshua. वो यहोशू को बुलाता He's है saying, Joshua, और कहता है you यहोशू gather a few men तुम कुछ मर्दों को इकट्ठा करो and you go and fight with the और Amalekites. जाकर तुम सब लोग मिलके अमालेकियों से लड़ो While I stand on top of the hill with the rod of God in my hand. और मैं परमेश्वर की लाठी को हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। You go to fight, तुम लड़ने को जाओ, I go in prayer. मैं प्रार्थना में जाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. Are you listening right now? क्या सुन रहे इस वक्त? Dear mothers, प्यारी माओ, your children are going out, आपके बच्चे बाहर जाते हैं, maybe for university, for work, or for business. शायद You be on the mountain and start praying for them. शायद यूनिवर्सिटी के लिए वो जा रहे हैं, काम के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए वो जा रहे हैं या व्यवसाय के लिए जा रहे हैं। आप पहाड़ पर वहां पे प्रार्थना करें। Are you listening right सुन now? Your husband is going for the battle. You get on the mountain. आपके पति जो है लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, आप उस पहाड़ पर लड़ाई लड़ें। You see, this is how it works. देखिए इसी तरीके से काम चलता है। This is the strategy. You're starting your business आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं after this lockdown, इस लॉकडाउन के बाद, after this time of zero income. और शून्य की जो आमदनी का जो दौर आप कह रहे हैं, इसके बाद Somebody has to be on the mountain. किसी को तो पहाड़ पर रहना पड़ेगा। You getting me right now? Now, Pastor, what if there is nobody on the mountain? पासवान जी, क्या होगा अगर पहाड़ पे कोई ना रहे तो? Then you divide your time on the mountain and you divide your time for work. तो आप खुद अपना समय बांट लीजिए पहाड़ पर रहने का और आपका समय काम को करने This का। is very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। This is what God showed me. Listen, और everybody. यही तो परमेश्वर ने दिखाया, पासवान जी को ध्यान से सुने। That's why इसलिए I want many of you to join the intercession on Noah app. The work has started. People's businesses have started. They are struggling. People's jobs have started, but they are struggling. Somebody
has to be on the mountain. This is the word of the Lord. Receive it right now. और देखिए, आप नोआ ऐप पर जो हमारा मध्यस्थी का सत्र Yes. होता है उसमें आप जुड़ जाएं। देखिए, क्योंकि अभी देखिए लोगों की बुरी दशा में से लोग जा रहे हैं, उनका व्यवसाय चल नहीं रहा, मुसीबत में है, तंगी में है, तो जरूरी है कि कोई उनके लिए प्रार्थना विनती करे। Rents to be paid, EMIs to be paid. Oh my goodness, it's tough. Somebody has to be on the mountain. और भाड़ा भरना जरूरी है, ईएमआई का भरना जरूरी है, बहुत ही मुश्किल दौर चल रहा है, तो किसी को तो पहाड़ पर रहना ही पड़ेगा। So you see, this is how the enemy tries to break people. They lie to people. But thank God for men of God, for people of God who carry the heart of Moses, to carry the heart of an intercessor. तो देखिए, इसी तरीके से शत्रु काम करता है, इसी तरीके से लोगों से वो झूठ बोलता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए जो परमेश्वर की आज्ञा मानकर पहाड़ पर रहेंगे और लोगों की खातिर प्रार्थना विनती करेंगे। Verse 10, let's go further. चलिए 10वें वचन So पर करना है। Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से जाकर लड़ने लगा। And Moses, Aaron and Hur went up to the top of the hill. और मूसा, हारून और हुर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। See, there was a team for battle and there's a team for intercession. देखिए, गौर करें, यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए अलग टीम थी और मध्यस्थी प्रार्थना करने के लिए अलग टीम थी। And now verse 11 tells us now what's happening on the mountain. और 11वां वचन बताता है कि पहाड़ पर क्या हो रहा था। And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed, began winning the battle. But when his hands came down, Amalek started winning the battle. 11वें वचन में ऐसा होता, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, मगर जब जब वो उसे अपने हाथ को नीचे करता तब तब अमालेकी लोग लड़ाई जीतने I लगते want to थे। tell you something right now. और चाहते हैं आपको कुछ बताएं इस The वक्त। battle in the natural is dependent on intercession. Hey, और स्वाभाविक स्तर में जो लड़ाई जो होती है, यह मध्यस्थी की प्रार्थना पर निर्भर है। dear businessman, प्यारे व्यवसायिक I लोग, want to tell you, आपसे कहना चाहते हैं, don't forget to join this live broadcast. इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़ना भूलिएगा नहीं। Dear businesswoman, प्यारी व्यवसायिक you महिलाओं, cannot afford to skip this live इस broadcast. लाइव ब्रॉडकास्ट को आप छोड़ नहीं सकते I want हैं। to tell you as a man of God, परमेश्वर जन के रूप में आपसे कहते हैं, I and the team are on the mountain for you. हम और हमारा टीम जो है आपके खातिर पहाड़ पर रहते Are हैं। you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? The battle shall be won. लड़ाई जीती जाएगी। But I also need your support to join in when you can to get on the mountain top along with me and the team. लेकिन साथ ही साथ आपसे अनुरोध भी करते हैं कि आप भी हमारे साथ एक टीम में जुड़ जाएं ताकि हम भी उस पहाड़ की चोटी You पर see, रह सकें। Moses, the man of God, he was a man. आप देखते हैं मूसा जो कि परमेश्वर का जन भले था, लेकिन वो एक आदमी था। He was lifting his hands and praying. वो अपने हाथ उठा के प्रार्थना And करता, as he was lifting his hands, जब तक वो अपना हाथ उठाए रहता, Israel was winning the battle. इजराइल वहां पर लड़ाई जीत रहे थे, Oh, but he got tired. लेकिन वो थक जाता। And then the Amalekites would win. फिर उसके बाद अमालेकी लोग जीतने लगते थे। They were God's people. अब देखते हैं वे लोग तो परमेश्वर के But लोग the थे, battle was oscillating. Battle was moving this way and that way. लेकिन उनकी This way लड़ाई and that way. कभी इस ओर जा रही थी तो कभी उस ओर, कभी ये जीत रहे थे, कभी वो जीत रहे Do थे। you understand what I'm trying to say? आपको समझ में आ रहा है जो हम कहना चाहते हैं? Yes, we are praying. जी हाँ, हम प्रार्थना कर रहे हैं। Pastor, पासवान if जी, we are praying, then why things are not? You see, the battle, sometimes it's winning, sometimes it's losing. You see, there are men and women that need your support. We men and women of God, the team needs your support. You have to hold their hands in prayer. You have to support them, join in the intercession, and the hands of the men of God and the women of God will be strengthened. और देखिए पासवान जी, अगर प्रार्थना चल रही है तो क्यों लड़ाई हारी जा रही है या लड़ाई इस तरह क्यों चल रही है? देखिए, कभी जीत वे रहे थे, वे लोग जीत रहे थे, कभी ये लोग जीत रहे थे। देखते हैं, क्योंकि ऐसे परमेश्वर के जन जिनको मदद की जरूरत है कि वे अपना हाथ उठाए रख सके, तो जरूरी है कि आप भी टीम में जुड़ जाए ताकि सबको मदद मिल सके, सहारा मिल सके। Now see, verse 12 says, Moses' hands became heavy. He was a man. पर जब मूसा के हाथ थक गए, They took a stone and put it under him. तब उन्होंने एक पत्थर लेकर उसके नीचे रख दिया And they held his hands. और उन्होंने उसके हाथ पर And they थामे। supported his hands, और one from one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. और उसके हाथों को वे एक ओर से पहले दूसरी ओर से उन्होंने हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. You see, the battle in the natural was dependent on the intercession of Moses. Hallelujah. और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। देखिए, वो
स्वाभाविक जो लड़ाई जो नीचे चल रही थी वो वहां मूसा के द्वारा जो प्रार्थना विनती किया जा रहा था उस पर निर्भर था। There is a battle out there. वहां पर एक लड़ाई चल रही है And if that battle has to be won, my friend, और मेरे दोस्त अगर लड़ाई को जीतना है you need supernatural power. तो आपको अलौकिक सामर्थ की जरूरत है। In these end times, इस अंतिम दिन you के समय just में can't go with your strength. आप अपनी ताकत से चीजों को अंजाम नहीं दे You must सकते। have the best of strategies. You must have the best of education. But you need somebody to hold you through prayer. Hallelujah. आपके पास Receive this word. अच्छी नीति हो सकती है, आपके पास अच्छा विद्या हो सकती है, लेकिन Yes. इस अंतिम दौर के समय में कोई तो ऐसा चाहिए आपको जो आपको मदद कर सके, आपके हाथों को थामे रख You सके। must be an executive watching me. You must be a manager, a CEO, a businessman, a businesswoman. I want to tell you, just don't go out there just like that. Get prayer organized. Just get intercession organized for you. Just connect with this ministry. Connect with us. We will stand with you, and I also want you to stand with us in prayer. Hallelujah. और शायद हो सकता है This आप is a word CEO from the हैं जो Lord. देख रहे हैं, या फिर आप एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, या फिर आप मैनेजर या कोई बड़े व्यवसायिक हो सकते हैं, व्यवसायिक महिलाएं। जरूरी है अगर आप देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध करते हैं कि इस सेवकाई से जुड़ जाए। यकीनन हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ आप भी सहारा बने और आपके भी हाथों को थामे रखेंगे, आप भी हमारा थामने में मदद Yes, करें। I'm praying for you. जी हाँ, पासवान जी आपके लिए प्रार्थना But कर रहे हैं। sometimes I do get tired लेकिन कभी-कभी पासवान जी कहते हैं खुद भी थकते हैं, because I am a man just like you. क्योंकि हम भी आप ही जैसे एक इंसान हैं। It's just because of the grace of God. बस सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह I की वजह want से you हो to रहा है। pray for me daily. चाहते हैं कि आप हर दिन उनके I लिए want you प्रार्थना to करें। pray for the team daily. चाहते हैं कि आप हमारी टीम के लिए रोज प्रार्थना करें, When you can join in और जब आप जुड़ सकते for हैं intercession, do join in. मध्यस्थी की प्रार्थना में तो जरूर जुड़िएगा। And many people, और बहुत सारे लोग, it will just grow and grow and grow. और ये बस बढ़ती चली I जाएगी। know your heart is stirred, my dear sister, my brother. हमें पूरा यकीन है कि प्यारे भाइयों बहनों, आपका दिल इस समय उत्तेजित हो चुका है। God wants more intercessors. परमेश्वर को और ज्यादा मध्यस्थी करने वाले If चाहिए। you are receiving this word right now, अगर आप इस वचन को इस वक्त ग्रहण कर रहे हैं bless you. This is the Holy Spirit talking to you. तो आप आशीषित हैं। पवित्र आत्मा यही आपसे कह रहा है। Don't be like those scoffers. और वे उपहास करना, ठट्टा They करने वाले only मत बने। talk. वे बस बोलते They रहते हैं। got big words, उनके पास बोलने के लिए बड़े-बड़े शब्द but they हैं, never pray for anybody. लेकिन कभी वे किसी के लिए प्रार्थना नहीं You may be करते। a simple person, a simple woman. Why not? Let us join hands together and say, Pastor, I'm going to strengthen your hands even as you pray for other people. I'm going to join in. You also pray for me. I also pray for you. भले आप Do कोई it. सीधे साधे मर्द हैं, सीधे सादी महिला है, क्यों ना आप मध्यस्थी की प्रार्थना में जुड़ जाएं। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी हमारे लिए मिलकर प्रार्थना करना। देखिए, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। And the last thing I want to bring out is आखिरी this. चीज जो सामने पेश करना चाहते हैं, Intercession must be based on the word of God. मध्यस्थी की प्रार्थना किया जाना यह परमेश्वर के वचन पर निर्भर होती Please है। understand this. ध्यान से सुनिए। We are not pleading with God. We are not trying to do something. God answers His word. और देखिए, हम परमेश्वर के सामने सब भीख नहीं मांग रहे या परमेश्वर से हम ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कर रहे। परमेश्वर जो है अपने वचन के मुताबिक ही उत्तर देता है। The Bible says they made Moses sit on a rock. और देखिए, बाइबल ऐसा कहते हैं कि उन्होंने मूसा के लिए ऐसा किया कि वो पत्थर, वो चट्टान पर बैठे। In other words, the foundation was the rock दूसरे शब्दों में वो बुनियाद जो थी वो चट्टान on थी, which the intercession of Moses was based upon. और जिस पर मूसा की मध्यस्थी निर्भर थी। So whenever you intercede for people, तो जब कभी आप लोगों के लिए मध्यस्थी I want करते to हैं, talk to the intercessors. मध्यस्थी करने वालों से बोल रहे हैं, Use the word of God. परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल। Pastor, I like to use the word of God, but I don't know the scripture reference. You know, there are some people who say, like, मुझे you know, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करके बोलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वचन का जो संख्या जो है वो मुझे पता नहीं है। Pastor, I cannot remember the scripture numbers. और पासवान जी, वचन के जो संख्या जो होता है, संदर्भ जो होता है, मुझे याद नहीं। Scripture numbers are for people. You don't have to tell God which scripture it is. और देखिए, वचन की जो संख्या है वो तो लोगों के लिए जरूरी है, आपको परमेश्वर से कहने की जरूरत नहीं है कि You वो know, संख्या one क्या day है। I was in an intercession somewhere, और एक दिन पासवान जी कहीं पर मध्यस्थी की and one प्रार्थना lady began. She says, एक महिला ने शुरू किया प्रार्थना करना। God, you said in so and page number 46, you know. वो ऐसे प्रार्थना करने लगी, हे परमेश्वर, तूने कहा है ऐसे पुस्तक में और ऐसे पढ़ने की संख्या नंबर में। You don't have to tell God the page numbers and everything. आपको देखिए, Just परमेश्वर speak से the सब word. कहने की जरूरत नहीं, बस आप वचन को बोलें, Just speak the word. बस वचन को बोलें। Even if you don't remember the scripture reference, and your intercession will carry more power. और भले आपको वो या फिर अंक या फिर संख्या आपको पता नहीं, कोई बात नहीं, आप बस वचन को बोलें, आपकी मध्यस्थी की प्रार्थना में और भी ज्यादा सामर्थ को लिए होगी। Hallelujah. Hallelujah. People of God. परमेश्वर के लोगों। I had a prophetic dream in this morning. आज की सुबह पासवान जी ने एक भविष्यवक्ताई का सपना देखा। I saw some people traveling in a train, पासवान जी ने देखे कुछ लोग जो है ट्रेन में सफर कर रहे and हैं the flood water is rising. और बाढ़ का जो पानी उठ रहा है। And I saw that happening in the realm of the spirit. पासवान जी ने देखे आत्मा के आयाम में होते हुए। And I said, God, what is this? पासवान जी ने पूछे, हे I परमेश्वर, ये क्या? said, the Holy Spirit said, this is what is happening to some people.
पवित्र आत्मा ने कहा यही तो वो चीज है जो कुछ लोगों के And साथ हो the रहा है। people began to pray. और फिर लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया And suddenly, और अचानक as if that thing entered, opening into the clouds, and suddenly there was sunshine, and it was so beautiful. And the Holy Spirit said, "Tell the church a breakthrough is coming soon." Hallelujah. और देखिए अचानक ऐसा हुआ, प्रार्थना करने लगे तो वो चीज जो है उसमें से प्रवेश करते हुए सीधे ऊपर चली गई और एकदम तेज रोशनी चमकी। और फिर पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लोगों से कहो उनका आश्चर्य बहुत ही जल्द आ रहा The है। cities, the nations that will get into intercession, they will rise up like anything. This is going to happen. और जो शहर जो राष्ट्र मध्यस्थी की प्रार्थना में शामिल होता है वे उठ खड़ा होगा और ऐसा होने वाला है। Many men of God, many ordinary people will rise up in power because they heard the call of the Spirit. और Hallelujah. देखिए बहुत सारे परमेश्वर के जन और जो परमेश्वर के लिए जो सीधे साधे लोग हैं वे उठ खड़े होंगे जो मध्यस्थी की प्रार्थना में शामिल होते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से लिए उनके लिए बुलाहट है। Dear sisters, प्यारी बहनों, dear mothers, प्यारी माओ, begin to intercede for your family members. अपने परिवार के लोगों के लिए मध्यस्थी करना शुरू Begin to करें। intercede for the church. कलीसिया के लिए प्रार्थना विनती करना Begin to शुरू करें। intercede for this ministry. इससे वकाय के लिए प्रार्थना विनती करना शुरू I'm करें। talking to the men right now. और जो मर्द लोग देख रहे हैं उनसे भी कह रहे Rise हैं up like Moses. मूसा के समान उठ It खड़े is होएं। not just enough going to work. Rise up like Moses. सिर्फ काम पर जाना ही काफी नहीं है, मूसा के समान उठ खड़े होएं। Begin to pray for your wife. Begin to pray for your family. अपने पत्नी के लिए अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। The battle will be won. लड़ाई जीत ली जाएगी। Before the sun can go down, the battle will be won. इससे पहले कि सूर्य अस्त हो लड़ाई जीत ली जाएगी। And many of you will have great testimonies. आप में से बहुत सालों के पास बड़ी महान अच्छी गवाहियां Not होंगी। next month, this month. अगले महीने नहीं, इसी महीने में। Hallelujah. Hallelujah. I just met a wonderful man of God from Pune just now. पासवान जी परमेश्वर एक महान जन जो पुणे से आए थे, बड़े अच्छे जन, उनसे मिले अभी। And I just went and met him and his to-be wife, और उन- Pastor Ravi. उनसे मिले, उनकी जो होने वाली पत्नी उनसे भी मिलकर आए हैं अभी हम। And suddenly God started pouring out prophetic scriptures, things over there for that person. और अचानक ऐसा हुआ कि परमेश्वर का आत्मा उन पर उंडेल, पासवान जी पर बातें उंडेल लगा, उनके साथ में जो आई थी उनके लिए I want to tell you कहना चाहते हैं prophetically भविष्यवक्ता के तौर पे that this is the month of breakthrough. यही महीना है आश्चर्य कर्म का। Something new God is going to move into your life.